Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your maths class of grade 3rd. Students, this is your maths class of grade 3rd, and today here we are going to start new chapter. Today here we are going to start new chapter, and name of our chapter is Fun with give and take. As you can see, the same thing is written here on board also. This is Maths chapter 6, Fun with give and take. Okay, so here we are going to learn many things today. So let's start. As you can see, the name of chapter is Fun with give and take. Means fun with give and take. So here we are going to learn many things. Let's start from addition. I know that you all are aware that how to do addition, but still I want to tell you once again. Here beta, suppose we have any number 2, 5, 3. Okay, we have a number 2, 5, 3, 1, 2, 4. Okay, now see, we are going to add this. But now see what I have written here, 2, 5, 3, 1, 2, 4. So as you all know that I have already explained to you that how we put ones, tens, hundred. हम इस तरीके से लिखते हैं ना. तो first we will put this here. This is ones place, this is tens place, and this is hundreds place. Okay. अब क्या हुआ देखिए. This is ones place, this is tens place, and this is hundreds place. Now you can say this like 253. अब आप इस नंबर को ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना. Then it is 253, and this is 124. Okay. Now see, we have to add. You all know how to add. So okay, it is very easy. Let's have addition first. 4, then 5, 6 and 7. What will come here? 7. Now 5, 6, 7. Again it's 7 it is. And now 2 and plus 1 is 3. So what answer I got here? 377. मुझे क्या मिल गया? 377. सबको आता है ना एडिशन? One more we can practice. ठीक है, कुछ भी नहीं था बेटा, बहुत इजी था. मैंने क्या किया, जो भी हमें नंबर्स दिए थे बस उसके ऊपर से ones, tens, hundred लिख दिया, and simply I have done addition. Okay. Now I know that you people are thinking that why I am telling you so much simple addition, because beta in this chapter we have to do many things like addition, then subtraction, then borrow one subtraction, and after that we have to do some other things related to calculation only. So that's why I am starting from this basic part. Okay. तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि एडिशन कैसे होता है. एक और देख लीजिए B1. What is here? Suppose I have a number 7, 2, 4 and 2, 3 and 5. Okay, but it is 7, 2, 4, 2, 3, 5. अब हमें कैसे पता चला कि we have to do addition? Because we have this sign. ये प्लस का साइन है ना, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें एडिशन करना है. Now I have already told you. First we will put this places. ठीक है, places रख देंगे. This is ones, this is tens, this is hundreds. Now start adding. 5 plus 4 is 5, 6, 7, 8 and 9. Simply what will come? 9. 3 plus 2 is 3, then 4 and 5. Then 7 plus 2 is 7, 8, 9. And what answer we are getting? 959. What is our answer? 959. Okay. So I hope that now you all are able to understand how to do addition. I know आप लोगों को पहले भी आता है, but just have a revision of this. Okay. Now after that I am going to tell you subtraction. Okay. समझ में आ गया addition simple way? Now let me start how to do subtraction. This is addition part. Now I am going to tell you that how to do subtraction. Now see beta,
Whenever you are solving questions, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको साइन का ध्यान देना है कि whether there is plus sign और minus sign, ठीक है। जब भी प्लस साइन होता है हम ऐड करते हैं, जब भी माइनस साइन होता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। So now I am telling you subtraction, okay? Subtraction. Now see, suppose I have a number 5, 9, 6, and this is 3, this is 6, and this is 2. Now see, but I have told you that we have to do subtraction. हमें subtraction करनी है। subtraction करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया है, ये माइनस साइन लगा दिया है, ओके। और I have to check here that whether it is minus sign or plus sign. Then I will decide कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। तो मैंने देख लिया है यहाँ पे माइनस साइन है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, कम कर देते हैं, राइट। नाउ सी, दिस इज 6, दिस इज 3, 6 minus 3 is 3 only. Now 9 minus 6 is again 3 only. 5 minus 2 is again 3. And what answer I am getting? 333. अब मुझे कैसे पता चला ये 333 है? Because here I know the places, ones, tens, 100. 300s के प्लेस में आया तो क्या हो गया 300, tens के प्लेस में 3 तो 30, ones के प्लेस में 3 तो 3. And what answer I am getting? 333. Okay? ये हो गया हमारा एक प्रकार का सब्ट्रैक्शन। वन मोर वी कैन ट्राई सिंपल सब्ट्रैक्शन, ओके। ये चीज हो गई। अभी देखिए, अच्छा, if anybody is having confusion that how we are getting this 3, this 3, this 3, so that also I am going to tell you. I know that now you are in grade 3rd, so I hope that you all know how to do subtract, but just I am explaining once again here, okay? ये तो सब्ट्रैक्ट करना बता दिया, बट अगर किसी को भी कंफ्यूजन है so kindly listen here carefully. अब देखिए, जैसे ये क्या था, ये 5 था, तो 5 की जगह मान लीजिए मैं 5 लाइंस डाल देती हूँ। 1 2 3 4 5, ये 9 है। अच्छा चलिए पहले 6 से इधर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कितने लाइन डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। अब देखिए, ये जो मैंने 6 लाइंस ड्रॉ करी हैं, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल हियर, यस इट इज नॉट विजिबल, आई एम राइटिंग हियर 1 2 3 4 5 6, ओके। मैंने 6 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब इन 6 लाइंस में से मुझे कितना माइनस करना है, 3। 6 में से कितना माइनस करना है, 3। माइनस मीन्स टू कट, उसे हम इरेज कर दें या कट कर दें, कुछ भी कर दें। तो अब देखिए 3 कट करना है, तो मैं यहाँ से 3 लाइंस कट कर देती हूँ, 1 2 and 3। हाउ मेनी लाइंस आर लेफ्ट, 1 2 and 3। इस वजह से यहाँ पे हमारा 3 आया है, ओके। सिमिलरली अब आप इसको चेक कर लीजिए, 9 और 6, मान लीजिए मैं 9 लाइन करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन हो गई, 9। काउंट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइंस डाली मैंने, 9। अब मुझे कितना माइनस करना है, 6। तो मैं क्या करूंगी, 6 लाइन को कट कर दूंगी। 6 लाइन को कट कर देते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6। Again, how much lines are left? 3. It means whenever we minus 6 lines from 9 or 9 from 6, but whenever we are subtracting 9 and 6, but we are getting 3 lines. जब भी हम 9 और 6 को माइनस करते हैं, हमें 3 नंबर मिलता है। क्यों मिलता है, you can check here now. Again, once more you can see I am telling for this 5 and 2 also. देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, और हमें क्या माइनस करना है, 2। तो मैं क्या करूंगी, 2 लाइंस कट कर दूंगी। जब मैं 2 लाइंस कट कर दूंगी, कितनी लाइंस बच गई, 3, ओके। सो देखिए यहाँ पे भी 3 लाइंस बच गई, यहाँ पे भी 3 लाइंस और यहाँ पे भी 3 लाइंस। दैट्स व्हाई व्हाट आंसर वी गॉट, 333। 333. So now I hope that you all are able to understand that how, though I know that you all know how to do subtract, but again I am telling you, okay? तो इस तरीके से आएगा। अब
एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, whenever subtraction is there, जब भी subtraction होता है तो उस समय क्या चीज का ध्यान देना होता है? subtraction में इस चीज का ध्यान देना होता है कि जो हमारा नंबर ऊपर लिखा है it should always be greater, उस नंबर को हमेशा बड़ा होना चाहिए। ओके, जो नंबर हमारा ऊपर जिससे हम माइनस कर रहे हैं, जो ऊपर वाला हमारा नंबर है वो हमेशा ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तभी तो देखिए जब ग्रेटर नंबर है तभी तो हम उससे कुछ कम कर पा रहे हैं। अगर नंबर स्मॉलर हो गया तो कैसे करेंगे? अब देखिए, सपोज मैं कह रही हूँ दैट यू हैव 3 ट्रॉफीज। ओके, सपोज यू हैव 3 ट्रॉफीज 1 2 and 3। ओके, सपोज यू हैव 3 ट्रॉफीज 1 2 and 3। अब देखिए आपके पास ट्रॉफीज 3 हैं और मैं कह रही हूँ कि 5 आप ट्रॉफीज अपने फ्रेंड को दे दीजिए। इज इट पॉसिबल? अगर आपके पास ट्रॉफी ही 3 है तो आप 5 ट्रॉफीज अपने फ्रेंड को दे पाएंगे? सोचिए, जस्ट थिंक ओवर इट। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सपोज यू हैव 2 पेंसिल्स एंड आई एम सेइंग टू यू दैट काइंडली गिव 4 पेंसिल्स टू योर फ्रेंड। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास वो चीज है ही नहीं उतनी तो आप देंगे कैसे बेटा? तो सेम थिंग माइनस में भी होती है। जैसे इसीलिए हमेशा, जैसे अब हम कह रहे हैं 6 में से 3 कट कर दीजिए, तो पहले आपके पास 6 होना चाहिए तभी तो आप उसमें 3 कट कर पाएंगे। अब मैं क्या, अगर मैं सपोज इस 6 और 3 को मैं अगर ऐसे लिख देती हूँ, सपोज आई एम राइटिंग दिस 6 and 3 लाइक दिस। See carefully, okay? Suppose I am writing this 6 and 3 like this. This is 3, this is 6 and now I am saying you to minus. अब मैं आपसे कह रही हूँ इन दोनों नंबर को माइनस करिए। ठीक है, this is 3 and this is 6। ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 6 हो गया और अब मैं आपसे कह रही हूँ इन दोनों नंबर को आप माइनस करिए। Is it possible? क्या ये हो सकता है? देखिए, जो ये वाला नंबर है टोटल लाइंस आपको इसकी लेनी होती है और फिर इस जो नीचे वाला नंबर है इतनी लाइंस को कट करना होता है। अब देखिए टोटल नंबर आपको लेना 3 है, 1 2 3 लाइंस ले लिया आपने। अब मैं कह रही हूँ आप 6 कट कर दीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? जस्ट थिंक ओवर इट। इज इट पॉसिबल? नो। अरे भाई, जब आपके पास 6 लाइंस हैं ही नहीं तो आप कट कैसे कर देंगे? क्योंकि लाइन्स ही 3 है ना बेटा। जब 6 होंगी तो उनमें से 3 माइनस हो पाएगा, लेकिन अगर 3 है तो क्या उनमें से 6 माइनस हो सकता है? नहीं। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि हमेशा माइनस में हमारा जो अबव डिजिट होता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ठीक, नाउ लिसन केयरफुली। अगर नंबर ग्रेटर नहीं है फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं? बोरो लेते हैं, हम उससे मांगते हैं दूसरे नंबर से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? पहली बात तो कि इस तरीके से माइनस कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर कोई माइनस में ऐसा दिया हो कि हमारी अबव डिजिट स्मॉलर हो और नीचे वाली डिजिट ग्रेटर हो, तो अब हम ऐसे नंबर को कैसे माइनस करेंगे? तो ऐसे नंबर को बेटा माइनस करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक बोरो फ्रॉम अनदर नंबर। आपको दूसरे नंबर से मांगना पड़ता है। अब देखिए वो कैसे होता है। द सेम आई एम गोइंग टू टेल यू। This is B1. This is I am going to tell you from very basic. Okay. So suppose I have only 2-digit number 7 and 3. Okay. 7 and 3, and here I have 4 and suppose I am writing 6. ओके, अब देखिए बिल्कुल वैसा ही बन गया ना जैसा मैं भी आपको बोल रही थी, बट आई टोल्ड यू। अब देखिए ये क्या है? 73 और ये क्या है? 46। अब मैं आपको बोल रही थी इसे आप सब्सट्रैक्ट करिए, इसे आप माइनस करिए। अब मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि माइनस के लिए जो अबव नंबर होता है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर। जो अबव डिजिट है उसे हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब लेकिन हमारी डिजिट तो स्मॉल है, तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हमें इसे माइनस करना है। तो अब कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे बोरो। बोरो लेंगे मीन्स हम किसी से कोई चीज मांगते हैं ना, बिल्कुल सेम चीज। तो अब हम क्या करेंगे? 3 है और ये नीचे 6 है, तो क्या ये हमारा क्वेश्चन गलत है? नो, आवर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर हम
लेकिन मैंने तो कहा था हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर ही नहीं सकते, तो अब कैसे करेंगे? सी, सो फॉर दैट वी हैव टू टेक बोरो फ्रॉम अनदर नंबर। मुझे इस नंबर से बोरो लेना होगा, ये नंबर इस नंबर की हेल्प करेगा। अब कैसे हेल्प करेगा? 7 से हम बोरो लेंगे 1 और ये बन जाए 3 हमारा बन जाएगा 13 और 7 हमारा बन जाएगा 6। 7 हमारा बन जाएगा 6। ओके, 3 हमारा, जब हमने 7 से 1 मांगा तो 1 3 के आगे आ गया एंड दिस इज 13 और 7 ने जब 1 नंबर दे दिया तो 7 में 1 नंबर कम हो गया एंड दिस इज 6। ओके, तो अब देखिए जो हमारा न्यू सम बन गया है, जो हमारा न्यू सब्ट्रैक्शन बन गया है, वो क्या बन गया है? अब 73 माइनस 46 नहीं है, अब वो ऐसे हो गया है 13 6 ओके एंड 6 4, वो इस तरीके से हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज ये जो 7 और 3 था इसके प्लेस पर क्या हुआ है? 3 की प्लेस पर 13 और 7 के प्लेस पर 6। तो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब हम इसे माइनस करेंगे। अब आप चाहे तो 6 के आगे काउंट भी कर सकते हैं 13 तक, और आप चाहे तो लाइन डाल के 6 लाइंस कट भी कर सकते हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं। 6 के आगे करिए, 6 के आफ्टर 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। कितना आया? 7। कितना आया? 7। तो 13 माइनस 6 इज 7। अब देखिए, अब 7 नहीं देखेंगे, 7 तो हमारा कट हो गया। 7 के प्लेस में क्या आ गया? 6। तो 6 माइनस 4 इज 2। 4 के आगे काउंट कर लीजिए, 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन होता है जहां पे हमारे बोरो वाला होता है। नाउ no need to worry, 2 more examples I will give you that how you can subtract such questions जहां पे हमारा above digit small होगा। ओके, now see, suppose I have one number 98, okay 94 and I have another number 48। ओके, देखिए क्या है 94 एंड 48। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे माइनस करना है क्योंकि माइनस का साइन लगा है। दूसरी चीज, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमें माइनस करना है। ये 4 है, ये 8 है। क्या 4 है तो 8 माइनस हो सकता है? नो। व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू, जब भी हमें ऐसे माइनस करना होता है तो अबव डिजिट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर 1। ओके, अबव डिजिट को हमेशा ग्रेटर 1 होना चाहिए, इसीलिए तभी हमारी नीचे वाली जो डिजिट है वो माइनस हो पाएगी, कुछ कट हो पाएगा उसमें से। अब देखिए ये 4 है, 4 तो नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे? हम मांग लेंगे। हम इस 9 से कहेंगे कि प्लीज हमें 1 नंबर दे दो। अब ये 9 हमें 1 नंबर देगा तो क्या हो जाएगा? 4 हमारा क्या बन जाएगा? 4 बेटा हमारा बन जाएगा 14 और ये 9 हमारा बन जाएगा 8। 4 हमारा बन जाएगा 14 एंड 9 हमारा बन जाएगा 8। अब हमें जो सब्ट्रैक्शन करना है वो करना किस किस के बीच में है? अब जो हमें सब्ट्रैक्शन करना है वो 14 और 8 एंड 4 के बीच में करना है। व्हाई? बिकॉज ये 4 14 हो गया क्योंकि ये 9 से इसने 1 नंबर मांगा और ये 14 बन गया, और ये 9 ने जब 1 नंबर दिया तो 9 से 1 कम हो गया, 9 के पास एक नंबर कम हो गया और वो कम होके 8 बन गया। नाउ व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट, तो व्हाट वी विल गेट 14 माइनस 8। अब 8 के आगे काउंट कर लीजिए, आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगेन यू कैन ट्राई, काउंट आफ्टर 8 8 9 10 11 12 13 14 15 6। अच्छा वेट, we have to till 14 only na, 8 9 10 11 12 13 14। what answer we are getting? We are getting 6। now देखिए 8 minus 4 what we will get? 4 only। so what answer we are getting? 46। so what answer we are getting? 46। so in this way we used to do subtraction। okay, अब देखिए एक और देख लीजिए। Now ones, tens, 100। अभी हमने छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन तो कर लिए हैं, अब हम क्या करते हैं? ones, tens, एक बड़ा नंबर लेते हैं। ओके, सपोज आई हैव वन नंबर 360
368 and 123. 368 and 123. अच्छा, दिस इज तो वेरी इजी ना, 123 ये सिंपल हो गया, सिंपल सब्सट्रैक्शन तो आप कर सकते हैं। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 माइनस 3 कितना होगा, काउंट आफ्टर 3, 3 4 5 6 7 8 कितना आया, 5 आया। 6 माइनस 2 आफ्टर 2 काउंट 2 3 4 5 6 कितना आ गया, 4 आ गया। 3 minus 1 after 1 you can count 1 2 after 1 2 and 3 what will come 2, so what answer we are getting 245. This is so simple. इस तरीके सब्ट्रैक्शंस आपको आते हैं। Now I am going to change the digits. अगर मान लीजिए इसमें मैं एक डिजिट चेंज कर दूं and in place of 8 if I put 2, अब बताइए ये कैसे होगा। ये 2 हो गया, ये 362 हो गया और ये कितना हो गया 123। दिस इज 362 एंड दिस इज 123। अब देखिए जो वंस प्लेस के नंबर हैं उसमें जो अबव डिजिट है वो क्या है, वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस वन डिजिट। जो डाउन साइड में जो डिजिट लिखी है उसके कंपैरिजन में जो अबव 9 की डिजिट है, जो वंस की प्लेस की डिजिट है वो छोटी है। छोटे में माइनस नहीं हो सकता, फिर हमें क्या करना होता है, बोरो लेना होता है। यस, तो अब मैं क्या करूंगी 6 से मांग लूंगी 2 के लिए, देन 2 विल बिकम 12 एंड 6 विल बिकम 5। अब देखिए और 3 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ा है तो वो इजीली माइनस हो जाएगा। अब देखिए 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 होता है। काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। ओके, नाउ 5 minus 2 is again 3 and 3 minus 1 is 2 and what answer we are getting 239. So I hope आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जब हमें माइनस करना होता है और बोरो वाला तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर से बोरो लेते हैं वो नंबर की एक डिजिट कम हो जाती है और जिस नंबर के लिए बोरो मांगते हैं वहां पे वो नंबर बढ़ जाता है। जैसे 2 है और 1 लेंगे तो वो 12 हो जाएगा, राइट। So I hope now you are able to understand how to do subtraction of borrow one. Okay, now after this I am going to tell today, see beta, I have already explained, I have already told you in starting of this video that we are going to learn many things. तो अभी हमने एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया। Now we will see missing numbers. ठीक है, missing numbers. Now we will see missing numbers. MISSING missing number. अब देखिए missing number कैसे होंगे, ये आपके लिए न्यू नहीं है because you all have done skip counting, right? skip counting आपको पता है तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। अब देखिए कैसे होता है, suppose this is 10 then 20. Now I am asking what will come here. How you will tell? You will find the difference between two. कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10 नंबर का है तो वही आप इसमें ऐड कर दोगे। 20 plus 10 is 30, राइट। ये आप कर चुके हैं तो आप सबको पता है। सपोज दिस इज नाउ 10 क्या हो गया, चलिए मैं 20 ले लूँ। अगर 20 के बाद 40 के बाद 60 के बाद कितना आएगा, कैसे बताएंगे आप? यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। कितने का डिफरेंस है, जब हम 40 माइनस 20 इज 20, मतलब जब हमने 20 में 20 प्लस किया तो हमारा 40 आया, फिर जब हमने 40 में 20 प्लस किया तो हमारा 60 आया। इट मीन जब हम 60 में फिर से 20 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80। ये आप सबको पता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वी हैव डन वेरी नाइसली स्किप काउंटिंग, दैट्स व्हाई नाउ आई एम टेलिंग यू सिंपली। ओके, अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, अब अगर हमें थोड़ा और बड़ा डिजिट मिल जाए तो क्या होगा, सपोज इट इज 100 then 300. Now if I ask what comes between, क्या आएगा, 100 के बाद 300, इन दोनों के बीच में क्या बच गया आपका, 100 के बाद 300, so what will come here, 200 then 300 then 400. See again, suppose it is 50 then 100
then 150. Now what will come? अब कैसे बताएंगे क्या आएगा? ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, और यहाँ पे क्या आएगा? कैसे बताएंगे? देखिए 50 में हमने कितना प्लस किया होगा कि 100 आ गया, वो पता करने के लिए हम 100 माइनस 50 कर सकते हैं। जब हमने 100 माइनस 50 किया तो आंसर हमारा 50 आ रहा है। इट मीन्स जब हमने 50 में 50 प्लस किया होगा तो हमारा 100 आया, फिर हमने 100 में 50 प्लस किया तो हमारा 150 आया। अब 150 में अगर हम फिर से 50 प्लस कर देंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। सो इन दिस वे we do this missing number. In this way we can find the missing number. Okay, now students, kindly open your maths book. Yes, kindly open maths book, page number 70. Kindly open page number 80. Chapter number 6, fun with give and take. Open page number 80. See beta, in page number 80 here some practice questions are given. Okay, you can see these are the practice questions. Okay, और कैसे practice question है? Word problem से related. So you can see here I am going to explain you two. They are very simple and rest I will tell you. Okay, अब देखिए I am going to explain simply. First one, क्या कह रहा है ये? बेबी टॉर्टॉइज इज 30 ईयर ओल्ड, मम्मा टॉर्टॉइज इज 150 ईयर ओल्ड, हाउ मच यंगर इज बेबी टॉर्टॉइज देन मम्मा टॉर्टॉइज। अब देखिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पढ़ के ये पता करना होता है कि हमें उसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। सॉरी, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? जब हम क्वेश्चन की दी हुई प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि कोई बेबी टॉर्टॉइज है, वो 33 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, जो बेबी टॉर्टॉइज की एज है वो कितनी है? 33 इयर्स। बेबी टॉर्टॉइज की एज इन्होंने हमें 33 इयर्स दे दी और ममा टॉर्टॉइज की एज इन्होंने हमें 150 दे दी। बेबी टॉर्टॉइज की एज हमारी, बेबी की एज हमारी कितनी दे दी है? 33, एंड ममा टॉर्टॉइज की एज इन्होंने हमें क्या दे दी है? ममा टॉर्टॉइज की एज इन्होंने हमें कितनी दे दी है बेटा? 150। ये 33 इयर्स का है, 150 इयर्स की है। अब हाउ मच यंगर इज बेबी टॉर्टॉइज देन ममा टॉर्टॉइज। अब यंगर क्या होता है? हम कहते हैं आपका यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर मीन्स छोटा। तो ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारा बेबी टॉर्टॉइज है वो ममा टॉर्टॉइज से कितना छोटा है। अब कितना छोटा है मीन्स दोनों के एज में कितना डिफरेंस है, और कभी भी हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? माइनस। इट मीन्स हमें क्या करना होगा? वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 150 एंड 33। ओके, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100। क्या करेंगे? अब देखिए 0 है, 0 तो हमारा हो नहीं सकता, हम 5 से लेंगे, हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 इज 7, 5 की जगह पे हो गया 4, 4 माइनस 3 इज 1, और ये हो गया 1, एंड बट आंसर वी आर गेटिंग 117 मीन्स बेबी टॉर्टॉइज ममा टॉर्टॉइज से 117 इयर्स यंगर है। ओके, नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 2, that is let's read question here. Arvind has read 69 pages of storybook. Gauri has read 95 pages of that storybook. Who has read more pages and how many more? अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि हमारा जो अरविंद है उन्होंने स्टोरी बुक पढ़ी। ओके, अरविंद ने जो स्टोरी बुक पढ़ी उस स्टोरी बुक के उन्होंने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं? 69 पेजेस। और जो हमारा गौरी है उन्होंने कितने पेजेस पढ़ लिए हैं? 95। अब ये पूछ रहा है सबसे पहले कि who has read more pages, किसने ज्यादा पेजेस पढ़ लिए हैं। अब आप बताइए, एक ने 69 पढ़े हैं, एक ने 95 पढ़े हैं। इट इज वेरी सिंपल, किसने ज्यादा पढ़ लिए हैं? गौरी। सिंपल आंसर इज गौरी। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो गया कि ज्यादा पेजेस किसने पढ़ लिए हैं? गौरी ने।
Now it is asking how many more, कितने ज़्यादा, how many more. तो जब भी how many more पूछते हैं तो we have to do subtraction, हमें हमेशा माइनस करना होता है। तो कितने ज़्यादा पढ़ लिए हैं वो कैसे पता चलेगा? अब देखिए we have to माइनस करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को पहले लिख देंगे 95, then we have 69, we are doing minus here. अब देखिए 5 है, 5 स्मॉलर डिजिट है एज कंपेयर टू 9, हम बोरो लेंगे, इट विल बिकम 15, इट विल बिकम 8। अब माइनस करिए 15 माइनस 9, काउंट आफ्टर 9, 9 10 11 12 13 14 15, how much is 6, and this is 8, after 6 count till 8, 6 7 8, and what we are getting 2, so the answer is 26. Means that Gauri has read 26 more pages than Arvind. गौरी ने कितने ज्यादा पेजेस पढ़े? अरविंद के कंपैरिजन में गौरी ने 26 पेजेस ज्यादा पढ़े. So in this way we used to do word problems. So whenever there is given all together मतलब सबका साथ बताओ, तो at that time we have to do एडिशन, क्योंकि हर पूरा जो भी ऑल टुगेदर बताना है, पूरा बताना है, तो उसके लिए हमें ऐड करना होगा. टोटल पूछेगा तो हमें ऐड करना होगा. हाउ मच इज लेफ्ट पूछेगा, लेफ्ट मतलब कितना बच गया, तो उस टाइम पे वी हैव टू डू माइनस. डिफरेंस पूछेगा, दो चीजों के बीच में अंतर बताओ, दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताओ, एट दैट टाइम वी हैव टू डू माइनस. So in this way, after reading the word problem, we have to decide that whether we have to do addition or we have to do subtraction. So I hope that in today's class you will able to understand how to do addition, how to do subtraction, how to do word problem, how to do missing numbers. So many things today we have discussed here. Rest part we will discuss later on. So thank you and have a nice day ahead.